Hello everyone. So I hope you are doing really well. And as we have completed the first and second part of the first chapter of History Class Ninth, the French Revolution, so we are heading towards the third part of this chapter, that is France abolishes monarchy and becomes a republic. Okay, so let's begin this topic. So let me just give you an overview of this whole topic, how what topics we are going to cover in this part of this chapter. That are we will get to know about the national anthem of France, we'll get to know about the Jacobins, we'll also get to know about the National Convention of France and the Reign of Terror, and then we'll get to know about the women's struggle for right to vote in France. Okay, so let's begin now. So in the first paragraph, we'll get to. So in the first paragraph, what happened is that Louis XVI was not a good man. Actually, he was betraying his own country people, and he was the king. He was the friend of the king of Prussia. Prussia and Austria both were the countries, both were the neighboring countries of France, and both countries were jealous of France's development. So the king of Prussia just thought to send his military into France, but before he thought, the National Assembly of France declared war against Austria and Prussia's king, Austria and Prussia, in April 1792. Remember this date? 1792. Okay, now here comes the national anthem of France. So what is the national anthem of France? The current national anthem of France is Marseillaise. So as we have Janganman, they had Marseillaise. They even still now have Marseillaise, France people. Okay, so who has written this Marseillaise? As Rabindranath Tagore has written Janganman, in the same way Marseillaise was written Roger de Leslie. So he was the man on your screen. Roger de Leslie wrote Marseillaise. Okay, now I hope it will be clear. So, how the French people got to know that this patriotic song, which is written by Roger de Leslie, is our national anthem? Actually, this patriotic song was sung by the volunteers from Marseille city. So, actually, in France, when military was coming from different parts of France, so from Marseille city, from Versailles city, when the military came in Paris and they were marching, at that time they sung this patriotic song. That is why it got famous. That is why the song got its name also, Marseillaise. So this is the national anthem of France. क्लियर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ. जब लोग जो थे, जब इतना कुछ हो रहा था, लोग मैन जब इतने सारे जा रहे थे लड़ने के लिए, बॉर्डर्स पे जा रहे थे, उस टाइम पे ना जो बहुत सी सोसाइटी में ऐसे भी लोग थे जिनको ऐसा फील हो रहा था कि रेवोल्यूशन जो हम कर रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो रेवोल्यूशन आगे भी कंटिन्यू नहीं था, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि वो जो रेवोल्यूशन है ना, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 है, वो किन लोगों को सिक्योर करता है? वो रिचर पीपल ऑफ सोसाइटी को सिक्योर करता है, मतलब जो अमीर लोग हैं सोसाइटी के, उनको प्रिविलेजाइज करता है। लेकिन जो गरीब हैं, फॉर एग्जांपल सर्वेंट्स हैं, शू मेकर्स हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे काम करते हैं, जिनको लोग इतना नहीं वैल्यू देते हैं, वो उन लोगों के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा प्रिविलेज नहीं है, या फिर थोड़े चेंजेस होने चाहिए उनके हिसाब से। तो उस टाइम पे बहुत पूरे फ्रांस में ना बहुत सारी वो बन रही थी, पॉलिटिकल क्लब्स बन रही थी। तो जब पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे, उनमें से सबसे फेमस जो पॉलिटिकल क्लब था, उसका नाम था जैकोबिन। अब जैकोबिन का नाम जैकोबिन क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल क्लब था, वो उस बिल्डिंग में मतलब सारे डिस्कशंस करता था, जो बिल्डिंग कॉन्वेंट था सेंट जैकोब का पेरिस में। फॉर्मर पुराना सेंट जैकोब जो है, उनका पुराना कॉन्वेंट जो था वो पेरिस में था, एंड उसी बिल्डिंग में वो सारे लोग, जो वो पॉलिटिकल क्लब के लोग जो हैं, वो जाके मीटिंग करते थे। तो इसीलिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब का नाम जैकोबिन रख दिया। अब आता है कॉन्वेंट क्या होता है। कॉन्वेंट आपको यहाँ पे शो कर रखा है, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। ओके, तो वो बिल्डिंग जो किसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हो, और वो कम्युनिटी कोई रिलीजियस लाइफ जीती हो, मतलब रिलीजियस पर्पस के लिए जीती हो। तो सेंट जेकोब के साथ जो लोग जीते थे, उनको उनकी वजह से उस बिल्डिंग को कॉन्वेंट कहा जाता है। क्लियर? और इस टाइम पे वुमेन भी एक्टिव थी, वुमेन भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स बना रही थी। ओके, और ये वाला जो पॉइंट मैं बता रही हूँ, वुमेन भी एक्टिव थी, ये आपको फोर्थ पार्ट जो है इसका, वुमेन स्ट्रगल, उसके बारे में, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा डीपर नॉलेज पता चलेगी इसके बारे में। नाउ अब नेक्स्ट पैराग्राफ जैकोबिन्स का हम जो कंटिन्यू कर रहे थे, तो जैकोबिन्स में क्या हो रहा था ना, कि जितने भी जैकोबिन्स के मेंबर्स थे, वो सारे ही जो बहुत ही लोअर उस पर, बहुत ही लेस प्रॉस्परस लोग, मतलब जो शू मेकर्स होंगे, सर्वेंट्स होंगे, ये स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, ये सब थे उसमें। ये सभी लोग ही मेंबर्स थे जैकोबिन की। और इनके लीडर कौन थे? इनके लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रोब्सपेरी। सो एज आई हैव शोन यू ऑल्सो द पिक्चर ऑफ मैक्सिमिलियन रोब्सपेरी, तो ये उनके लीडर थे, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। और इन्होंने ही रेन ऑफ टेरर जो था, वो इनकी वजह से था, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो अब ना फ्रांस में ना एक एक जो अमीर लोग होते थे ना वहाँ पे फ्रांस में, तो उनका ना एक आउटफिट होता था, मतलब वो लोग नी ब्रीचेस पहनते थे। अब यहाँ पे एक टर्म आई है, नी ब्रीचेस, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नी ब्रीचेस। मैं आपको नी ब्रीचेस शो करती हूँ कि एक्चुअल में नी ब्रीचेस होते क्या हैं। सो नी ब्रीचेस होता है, ये जो आपकी स्क्रीन पे मैं शो कर रही हूँ, ये होते हैं नी ब्रीचेस। और जो लोग इस तरीके से पहनते थे, जैसे इंडिया में अगर कोई कोट पैंट पहनता है तो उसको नोबल मैन कंसिडर किया जाता है, एक जेंटल मैन। वैसे ही फ्रांस में जो नी ब्रीचेस पहनते थे, उनको एक नोबल एंड जेंटल मैन कंसिडर किया जाता था। लेकिन
इसी वजह से जैकोबिन्स जो थे ना, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपने अपने आउटफिट्स अलग रखेंगे ताकि वो जैकोबिन के मेंबर कहलाए जाए। इसलिए उन्होंने क्या आउटफिट रखा, वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे जैसे कि डॉक वर्कर्स पहनते हैं, एंड वो रेड कलर की कैप्स पहनती थी। आपकी बुक में भी ये मेंशन हो रखा है। मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। यस, मैंने आपको एक फिगर दिखाई है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि ये एक लुक होता था जैकोबिन के मेंबर का, रेड कैप एंड लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। तो ये एक लुक था, ठीक है। और इनको इसी वजह से जो जैकोबिन के मेंबर्स थे उनका एक नाम निकाला गया था, सैंस क्यूलोट्स। क्या? सैंस क्यूलोट्स। तो जो सैंस क्यूलोट्स लोग होते थे, उस ये नाम को इसलिए मिला गया क्योंकि इस नाम का, सैंस क्यूलोट्स टर्म का मीनिंग है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, वो लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। सिंपल। अब आता है ये रेड कैप क्यों पहनी है इन्होंने। रेड कैप का जो एक्चुअली फ्रांस में रेड कैप जो है वो लिबर्टी सिंबलाइज करती है। रेड कैप का मतलब लिबर्टी होता है फ्रांस में। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस ये जो जैकोबिन का था, इसमें जैकोबिन मेंबर्स में कोई भी विमेन अलाउड नहीं थी। ओके। अब क्या होता है, जैकोबिन जो होता है उन्होंने अपना ग्रुप तो बना लिया, सब कुछ कर लिया, बट अब करना क्या है उनको। तो इसीलिए उन्होंने 1792 में उन्होंने प्लान किया कि वो क्या कहते हैं, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज जो है, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज वो एक टाइम, उस टाइम पर जैसे पैलेस ऑफ वर्सेल्स था वैसे पैलेस ऑफ ट्यूलरीज था। वहां पर उन्होंने हमला किया और किंग के जितने भी गार्ड्स थे सारे गार्ड्स को मार गिराया और किंग को किडनैप कर दिया, लाइक होस्टेज ले लिया एज ए होस्टेज। सेवरल आवर्स तक, काफी घंटों तक किंग को एज ए होस्टेज अपने पास रखा जैकोबिन्स ने, ठीक है। और बाद में नेशनल असेंबली ने भी क्या किया, नेशनल असेंबली ने वोट किया कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन मतलब जेल में डालना है। तो उन्होंने, नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया जो रॉयल फैमिली मतलब किंग की जो फैमिली है उसको जेल में डालेंगे, एंड जो जैकोबिन्स ने कैप्चर किया था, मतलब उनको एज अ होस्टेज रखा था किंग को, उनको भी ले लिया गया। फिर अब क्या हुआ, अब नेशनल असेंबली को समझ आया कि जैकोबिन्स क्या चाह रहे हैं, तो नेशनल असेंबली ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए। उन्होंने 21 दोबारा से इलेक्शंस हुए नेशनल असेंबली के, और 21 साल से 21 ईयर्स से अबव के मेन जितने भी हैं, उनकी वेल्थ चाहे कितनी भी हो, कितने ही गरीब हो या कितने ही अमीर हो, सबको राइट टू वोट होगा। एंड वो वोट कर, और उन्होंने जब 21 अबव के लोगों ने जब वोट किया, तब नेशनल असेंबली नहीं नेशनल कन्वेंशन बना। मतलब नेशनल असेंबली ने अपना नाम चेंज कर दिया, नेशनल कन्वेंशन ऑफ फ्रांस रखा। एंड उसके बाद 21 सितंबर को पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पर हमला किया गया था। तो ये कब हुआ था? 10 अगस्त। ये भी एक डेट है जो रिमेंबर याद रखनी होगी हमें। तो 10 अगस्त को पैलेस ऑफ ट्यूलरीज को हमला किया गया था। और फिर 21 सितंबर 1792 को मोनार्की का जो सिस्टम था फ्रांस में वो पूरी तरह से अबॉलिश हो चुका था, एंड फ्रांस में को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था। ओके, फ्रांस अब एक रिपब्लिक घोषित हो चुका है। और रिपब्लिक में पता ही है आपको कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का हेड सब कुछ पीपल ही डिसाइड करते हैं। तो ये यहाँ पे खत्म होता है। अब आता है जो लुइस 16 थे ना, अब उनका क्या हुआ, वो तो होस्टेज रखे गए, तो अब उसके आगे क्या हुआ, लुइस 16 को कोर्ट ने डेथ की सजा दी, मतलब उनको फांसी की सजा दी गई ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब होता है कि बगावत की वजह से। बगावत का क्या मतलब होता है? बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, मतलब अपनी गवर्नमेंट को धोखा देना या अपनी ही कंट्री को धोखा देना। तो उस बेसिस पर इनको सजा दी गई। और 21 जनवरी 1793 को इनको पब्लिकली मारा, मतलब फांसी दी गई, पब्लिकली फांसी दी गई। और कहाँ पर? प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड। इसको याद रखने वाली चीज़ है ये, क्या यहाँ पे? प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड। ओके। तो अब आता है जो इनकी क्वीन थी मैरी एंटोनेट, वो भी कुछ टाइम बाद उनके साथ भी सेम यही चीज़ की गई एंड उनको भी मार दिया गया। अब यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट होता है, रेन ऑफ टेरर, जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था। तो और मैंने आपको बीच में बताया भी था कि मैक्सिमिलियन रोब्सपेरे जो हैं उनका रेन ऑफ टेरर से क्या रिलेशन है। रेन ऑफ टेरर वो टाइम पीरियड है 1793 से 1794 के टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में रोब्सपेरे जो थे वो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे, और उनकी जो जितनी भी पॉलिसीज वो लगाते थे ना, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देते थे। जो भी उनको एनिमीज, वो कुछ लोगों को ना एनिमीज कंसिडर करते थे, जैसे कि जो पुराने नोबल्स रह चुके हैं या पहले के क्लर्जीज रह चुके हैं, या फिर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, या फिर उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स जो उनके मेथड्स को एडमायर नहीं करते हैं, उन लोगों को भी वो अपना मतलब एनिमी समझते हैं। और वो जो भी ऐसे लोग उनको दिखते भी है ना, तो वो क्या करते हैं, सीधा उनको अरेस्ट करते हैं और जेल में डाल देते हैं। और जब वो सीधा अरेस्ट करके जेल में डालते हैं तब वो कोर्ट में जाती है ये बात। और कौन सा कोर्ट यूज़ करते हैं? रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल कोर्ट था उस टाइम पे। वो कोर्ट किस चीज़ के लिए बनाया गया था? वो कोर्ट बनाया गया था ट्रायल ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। याद रखने वाली बात है कि रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है वो किस लिए बनाया गया? वो बनाया गया था ट्रायल ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। ओके। अब जो ट्रायल ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज मतलब रोब्सपेरे की बात नहीं मानते या फिर उनको नहीं अच्छा लगता है कि पॉलिटिकल ये जो पॉलिसी है ये सही है, तो वो लोग को जब अरेस्ट कर लिया जाता था तब उनका ट्रायल इस कोर्ट में होता था। और अगर कोर्ट मानता है कि हाँ भाई ये गिल्टी है तो उसको ग्विलोटीन कर देता था। और ग्विलोटीन, अब यहाँ पे एक टर्म है ग्विलोटीन, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्विलोटीन आप देख रहे होगे,
ये guillotine is a device consisting of two poles and blades with which a person is beheaded. It's named after Dr. Guillotine who invented it. Okay, तो मैं दिखाती हूँ आपको गुलोटीन एक्चुअली। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो एक फिगर है ये एग्जैक्ट गुलोटीन बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। ये एक छोटा दिखाया हुआ है काफ़ी, आपको इतना छोटा नहीं होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, हाइट भी उसकी काफ़ी होती है। और इस गुलोटीन को पब्लिकली हमेशा कभी भी मारते थे ना, तो पब्लिकली मारते थे, और गुलोटीन को बिल्कुल सेंटर में रख के एंड उसमें इंसान को मारते थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मारते थे इंसान को एक्चुअली। ये देखो आपकी स्क्रीन पे मैंने दिखाया है कि इस तरीके से लोग मारते थे, उन्हें फोर्सफुली अंदर जाते थे, वो उनका मुंह डालते थे, सर डालते थे, जिसकी वजह से और फिर जब वो ब्लेड गिरती थी तब उनका जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लेड है ये हाँ, ये जो ब्लेड है ये एक पुली सिस्टम पे है। देख रहे हो आप यहाँ पे एक सर्कल सा है, एंड ये जो ब्लेड है ये एक्चुअली पुली सिस्टम पे है। दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये पुली सिस्टम पे है, ब्लेड गिराते हैं वो, ये काफ़ी भारी आयरन की ब्लेड होती है, ये वो गिराते हैं एंड वो गिरते ही इंसान का सर कट जाता है, ठीक है। तो ये होता है गुलोटीन। ये एक और इमेज आपको दिखा रही हूँ मैं, सो दैट आप देख सको कि ये जो आप बास्केट देख रहे हो इसमें इंसान का सर नीचे गिरता है कट के, और ये बांध के इंसान को ऐसे ही डाला जाता है। तो इस तरीके का होता है गुलोटीन। तो बिल्कुल इसी तरीके का होता है गुलोटीन, एंड ऐसे ही इंसानों को मारा जाता था, और गुलोटीन का ही यूज़ किया जाता था रेन ऑफ टेरर के टाइम पे। और इसका नाम गुलोटीन क्यों रखा गया, क्योंकि इसको डॉक्टर गुलोटिन ने बनाया, सो सिंपल, डॉक्टर गुलोटिन ने इसको बनाया। और उस टाइम पे जब ये रेन ऑफ टेरर चल रहा था तब काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा था, रोब्सपेरे की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, इक्वालिटी इवन वो ब्रेड में भी करते थे कि सभी लोग होल व्हीट ब्रेड ही खाएंगे, कोई दूसरा ब्रेड भी नहीं खा सकता। तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की वजह से जो उनके खुद के सपोर्टर्स थे ना, वो भी उनके अगेंस्ट हो गए, एंड उन्होंने क्या किया, वो और भी चीज़ें उन्होंने की, जैसे कि उस टाइम पे एक नॉर्मल लेडी और एक मैन को ट्रेडिशनल तरीके से मॉन्सियर और मैदाम बोलते थे, मॉन्सियर फॉर सर एंड मैदाम फॉर मैडम। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अब से ये लोग सिटोयन और सिटोयनी कहलाएंगे। सिटोयन मतलब मेल सिटीजन, सिटोयनी मतलब फीमेल सिटीजन। और इन्होंने चर्चेस भी बंद करवा दिया, और चर्चेस की बिल्डिंग को ऑफिसेज बना दिए। ये इन्होंने ये सब कुछ किया, और उनके सपोर्टर्स इनको भी सपोर्ट नहीं करते थे। एंड एक टाइम आया जब रोब्सपेरे के अगेंस्ट कोर्ट में केस हुआ, एंड जुलाई 1794 को कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, और अगले ही दिन जुलाई 1794 में कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट किया, और जस्ट नेक्स्ट डे उनको गुलोटीन कर दिया, मतलब सेंड टू द गुलोटीन में भेज दिया। ओके, रोब्सपेरे का सिर्फ इतना है और कुछ नहीं। और ये जो सोर्स डी आप देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर ये एक इमेज है, ये आ गया है रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं इतना खास। फिर आता है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो जो डायरेक्टरी रूल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें क्या हुआ, अब जब जैसे जैकोबिन्स की गवर्नमेंट फॉल हो गई क्योंकि उनके लीडर ही मर गए, तो जैकोबिन्स कहाँ रहे, तो जैकोबिन्स की गवर्नमेंट चली गई, जैकोबिन्स अब हुआ ही नहीं। तो अब क्या हुआ, जो मिडिल क्लास मतलब जो वेल्दी एंड मिडिल क्लासेस के लोग थे, उन्होंने सोचा अब सही टाइम है पावर को छीन लेने का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें उन्होंने नॉन प्रॉपर्टी क्या क्या रूल्स रखे कि जो सोसाइटी में जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग वोट कर नहीं सकते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा क्या किया, उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए जिनको इलेक्ट किया जाएगा, और उन्होंने एग्जीक्यूटिव में उन्होंने एक डायरेक्टरी अपॉइंट की, और उन्होंने एग्जीक्यूटिव 5 लोगों की बनाई, एंड एग्जीक्यूटिव में उन 5 लोगों को डायरेक्टर्स कहते थे। तो ये ऐसा उन्होंने कहा, और जो रेन ऑफ टेरर के टाइम पे सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव थे, कौन, रोब्सपेरी। उसके बाद क्या हुआ, अब क्या होता था ना, डायरेक्टर्स और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग थे उनके ना बीच में, उनके डिसीजंस के बीच में काफ़ी क्लैश चलता रहता था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसी दौरान इसी वजह से, इस क्लैश की वजह से, इट्स अनस्टेबिलिटी मतलब इंस्टेबिलिटी जो थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसकी वजह से एक मिलिट्री डिक्टेटर फ्रांस में खड़े हुए जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ये थे मिलिट्री डिक्टेटर जो, और मैंने नाम आपको बता ही दिया, नेपोलियन बोनापार्टी। तो इनका एक्चुअली नेपोलियन बोनापार्टी के बारे में ना अभी आपको कोई भी नॉलेज नहीं शेयर की जाएगी, आपको इसके बारे में आगे जाके पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं एंड होता है। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे, जो है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। तो अब इस पार्ट में क्या है ना, इस पार्ट में ज़्यादा कुछ आपको लर्निंग के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें एक्चुअली। इसमें बस इतना बताया है कि जो विमेन का काफ़ी स्ट्रगल हुआ, जितने भी अभी तक जैकोबिन्स ने भी विमेन पर नहीं गौर किया, रेन ऑफ टेरर में भी विमेन की वैल्यू नहीं थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स विमेन फेस करते थे, एंड थर्ड स्टेट की स्पेशली, क्योंकि वो गरीब होती थी तो उनको काम भी करना होता था और घर भी देखना होता था। तो इतना सारा, और वुमेन के जो वेजेस होती थे, मतलब वो जो काम करते थे उनकी सैलरी भी कम दी जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ कि वो वुमेन है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे, जब जैकोबिन्स फेमस हो रहे थे, तो वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स भी बन रहे थे, जिनमें जो अराउंड 60 बने थे पूरे फ्रांस में 60 पॉलिटिकल क्लब्स बने थे वुमेन के। लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही काफ़ी फेमस हुए, एक था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड दूसरे का नाम था रिपब्लिकन वुमेन। 2 ये थे, ठीक है।
ये सबसे फेमस थे। एंड ये पैराग्राफ यही एंड होता है। अब दूसरे पैराग्राफ में आता है कि एक्चुअली जो वुमेन थी ना वो उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थी, जिसके लिए उनकी मेन डिमांड थी कि उनको पॉलिटिकल राइट दिया जाए, मतलब उनको राइट टू वोट दिया जाए और उनके वेजेस इक्वल रखे जाए। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में तब उनको पैसिव सिटीजन कर दिया। उन्होंने भी बल्कि स्ट्रगल किया, तब भी उनको पैसिव सिटीजन रख दिया गया, तो इस बारे में उनको काफ़ी बुरा लगा। उसके बाद क्या हुआ ना, जब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें ऐसा नहीं है कि वुमेन के लिए वुमेन ने स्ट्रगल किया तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। उसका रिजल्ट आया कि वुमेन की लाइफ थोड़ी इंप्रूव कर दी, बेटर कर दी कॉन्स्टिट्यूशन ने। और उन्होंने 5 तरीकों से वुमेन की लाइफ को इंप्रूव किया। पहला कि गर्ल्स के लिए स्कूल जाना, स्कूलिंग को कंपलसरी कर दिया। दूसरा कि उनको गर्ल्स के फादर उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं शादी के लिए, ये। तीसरा, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें फ्रीली दोनों साइड से सिग्नेचर्स होंगे एंड वो सिविल लॉ के अंडर रजिस्टर होगा। फिर उसके बाद चौथा क्या बनाया कि जो डिवोर्स है वो लीगल बना दिया। डिवोर्स विल बी लीगल, मैन भी दे सकता है एंड वुमेन भी दे सकता है, वुमेन भी दे सकती है। कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि सिर्फ मैन ही डिवोर्स दे तभी डिवोर्स माना जाएगा, वुमेन दे तो नहीं माना जाएगा, दोनों डिवोर्स दे सकते थे। और फिफ्थ वे जो था वो था कि वुमेन जॉब्स के लिए ट्रेन कर सकती हैं और आर्टिस्ट्स बनना चाहें तो बन सकती हैं। अगर वो चाहें तो कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, उनको इतनी फ्रीडम दी थी। बट उसके बाद जब रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ तब रेन ऑफ टेरर में जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स थे, वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स, उनको बंद करवा दिया गया रोब्सपेरी ने। एंड और जो जितने भी उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी वुमेन की उनको बैन करवा दिया। तो ये भी गलत हुआ। उसके बाद आता है कि अब वुमेन का जो स्ट्रगल था ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में यही हो रहा था कि वुमेन को वोट, राइट टू वोट वगैरह ये सब नहीं मिल रहा था। मेनली फ्रांस में क्या वुमेन की नीड्स थी, वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजेस। तो अगले 200 साल बाद, टू सेंचुरीज बाद 1946 में फाइनली वुमेन को ये आज़ादी, फ्रांस में राइट टू वोट मिल गया। कौन से ईयर में वुमेन को वोट मिला फ्रांस में? 19 एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, या 1946 में। आप ये लर्न करना चाहो तो इसको लर्न करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के ईयर से जस्ट 1 ईयर बिफोर। ओके ओके, नाउ अब आता है ये सोर्सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े इसमें ज़्यादा वैसे है भी नहीं बट हाँ है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ओलंपे दे गुजिस, ये जो एक रेवोल्यूशनरी वुमेन थी, जैसे कि जैकोबिन्स में रोब्सपेरी थी ना, वैसे ही ये भी एक पॉलिटिकल क्लब्स चलाती थी एंड काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी फ्रांस में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना 1791 में, तब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक पैम्फलेट निकला था, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। और इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में विमेन को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब वुमेन को कंसिडर ही नहीं किया। तो इस बात से इनको बहुत ज़्यादा वो हुआ कि एक तो हमने स्ट्रगल भी किया एंड हमारे लिए कुछ आया भी नहीं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 1791 तक 1791 में ही इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन बनाया। इन्होंने एक खुद से पैम्फलेट बनाया और वो पैम्फलेट इन्होंने क्वीन मैरी एंटोनेट्टे को भेजा एंड नेशनल असेंबली को भेजा कि उन लोगों को बोला कि इस पर काम किया जाए। बट कोई काम नहीं आया, कोई रिजल्ट्स नहीं आए। और फिर उसके बाद 1793 में जब जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया था इन्होंने, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बंद करवा दिए थे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बैन करवा दी थी। एंड जो रोब्सपेयर तो ऐसे लोगों को एनिमीज समझते थे तो उन्होंने अरेस्ट किया इनको, इनका कोर्ट में ट्रायल हुआ एंड जज ने गिल्टी पाया, क्योंकि और इन पे आरोप क्या लगाया गया कि ट्रेजन का आरोप, मतलब बगावत का आरोप, कि ये मतलब ये धोखा दे रही हैं कंट्री की वुमेन को। एंड फिर इनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब इनको भी फांसी की सज़ा दे दी गई। तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट यहाँ एंड होता है। उसके बाद ये जो सोर्स एफ है ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये एक्चुअली जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन के कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ सकते हैं। सोर्स जी जो है इसमें एक्चुअली बताया गया है कि जो जैकोबिन पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था शॉमेट, उन्होंने 1793 में जब उनको बोला गया कि पॉलिटिकल क्लब्स बंद करवा रहे हैं तो आप जस्टिफाई करो, रीज़न दो क्या है भाई। तो उन्होंने क्या रीज़न दिया कि नेचर ने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, मैन को बोला है कि तुम हंटिंग करो, एग्रीकल्चर करो, और वुमेन को बोल रखा है तुम घर देखो। और वो उन औरतों को शेमलेस कह रहे थे जो चाहती थी राइट टू वोट, और ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जिसमें बताया हुआ है। तो ये काफ़ी गलत पॉइंट ऑफ व्यू था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ वाला जो ये पार्ट था चैप्टर का, डिड फोर्थ जो है वो डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, एंड थर्ड जो है वो है, और जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है उसका नाम है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ओके, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। एंड अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट आप कमेंट्स में ज़रूर डालो, कि आपको कोई भी डाउट आए ना तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगी। एंड फिर भी मैं आपको कल क्लियर करवा दूंगी। ये बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा इसमें आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है या फिर इन क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो।
इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आपके फ्रेंड्स को भी इसको समझ आए ईजिली, तो आप इसको शेयर करो। एंड अगर आपको 5th एंड 6th पार्ट की वीडियो जल्द से जल्द देखनी है तो सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले तो, ठीक है? सब्सक्राइब करोगे तभी आ पाएगी। एंड और तो कुछ, हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। चलो ठीक है, बाय। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय।